Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. Today I'm going to deal with a new lecture of Modern English Class 7. Title of the lecture is Black Beauty. Lesson number 2. So, this lesson is all about a young male horse which narrates a story of a hunting incident where the people kills innocent hare just to please themselves and just for their entertainment. So, this lesson is taken from the real novel Black Beauty by Anna Sewell. Let's start the reading. Before I was 2 years old, जब मैं 2 साल का था. यहाँ ये याद रखना है कि ये स्टोरी एक घोड़ा बयान कर रहा है. Before I was 2 years old, मैं जब 2 साल का था, a circumstances happened, मेरे साथ एक वाक़या हुआ, which I have never forgotten, जो मैं कभी नहीं भूल सकता. It was early in the spring. ये वाक़या ख़ज़ा के आगाज़ में हुआ. There had been a little frost in the night. रात में थोड़ी फ्रॉस्ट पड़ रही थी, यानी कि धुंध पड़ रही थी, कोहरा पड़ रहा था. And a light mist still hung over the woods and meadows. धुंध ने जंगल और चरागाहों को घेरा हुआ था. I and the other colts were feeding at the lower part of the field. मैं और दूसरे बछेरे चर रहे थे, यानी कि खा रहे थे, खेत के निचले हिस्से में. When we heard, जब हमने सुना, quite in the distance, काफ़ी फासले से, what sounded like the cry of dogs, जो कि कुत्तों की चीखों की तरह लग रहा था. The oldest of the colts raised his head. बछेरों में जो सबसे बड़ा था उसने अपना सर उठाया. Pricked up his ears, और अपने कान खड़े कर लिए. And said, और कहा, There are the hounds, वो रहे शिकारी कुत्ते. And immediately, और फ़ौरन cantered off, और फ़ौरन भागे. Followed by the rest of us, पीछा करते हुए बाकी जो घोड़े रह गए थे उनका. To the upper part of the field, खेत के ऊपर वाले हिस्से की तरफ. Where we could look over the hedge, जहाँ से हम झाड़ियों के ऊपर से. And see several fields beyond, और बहुत से खेतों के परे देख सकते थे. My mother and an old riding horse of our masters were also standing near and seemed to know all about it. मेरी माँ और मालिक का एक बूढ़ा घोड़ा भी नज़दीक ही खड़े थे और लगता था ये सब कुछ जानता है. They have found a hare, said my mother. मेरी माँ ने कहा, शिकारी कुत्तों को खरगोश मिला है. And if they come this way, we shall see the hunt. और अगर वो इस रास्ते आए तो हम शिकार को देखेंगे. And soon the dogs were all tearing down the field of young wheat next to us. और जल्द ही हमारे सामने जो ताज़ा फसल थी गंदम की, इसमें भाग रहे थे. शिकारी कुत्ते उसमें भाग रहे थे. I never heard such a noise as they made. मैंने कभी पहले ऐसा शोर नहीं सुना था जो वो मचा रहे थे. They did not bark, ना ही वो भौंक रहे थे, nor howl or nor whine, और ना ही हाँक रहे थे, गुर्रा रहे थे. But kept on a you at the top of their voices. लेकिन वो बड़ी ताकत के साथ, कुव्वत के साथ यू की आवाज़ें निकाल रहे थे.
After them came a number of men on horseback. इनके पीछे बहुत से लोग थे जो कि घोड़ों पर बैठे हुए थे. Some of them in green coats. उनमें से कुछ ने ग्रीन कोट्स पहने हुए थे. All galloping as fast as they could. और वो इतना तेज़ी से दौड़ रहे थे जितना वो भगा सकते हैं घोड़ों को. The old horses snorted and looked eagerly after them. बूढ़े घोड़ों ने खराटे लिए और वो बड़े जोश के साथ उनको देख रहे थे. And we young colts wanted to be galloping with them. और हम नौजवान घोड़े जो कि उनके साथ भागना चाहते थे. But they were soon away into the fields lower down. लेकिन जल्द ही वो नीचे खेत में चले गए. Here it seemed as if they had come to a stand. यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो खड़े हो गए थे. The dogs left off barking. कुत्तों ने भौंकना छोड़ दिया था. And ran about everywhere with their noses to the ground. और ज़मीन से नाक लगाए ज़मीन पर सूंघते हुए भागने लगे. They have lost the scent, said the old horse. बूढ़े घोड़े ने कहा वो खुशबू खो चुके हैं, शिकार की खुशबू. Perhaps the hare will get off. शायद कि खरगोश बच निकला. What hare? I said. मैंने कहा कौन सा खरगोश? Oh, I don't know what hare. और मुझे नहीं पता कौन सा खरगोश. Likely enough it may be one of our own hares out of the woods. शायद हमारे जंगल के खरगोशों में से कोई खरगोश है. Any hare they can find will do for the dogs and men to run after. कोई भी खरगोश आदमी या कुत्तों को मिल जाए ये उनके भगाने के लिए काफ़ी है. After and before long the dogs began their you again. जल्द ही कुत्तों ने अपनी यू दोबारा शुरू कर दी. And back they came all together at full speed. और सब मिलकर पूरी रफ्तार से वापस पीछे आए. Making straight for our meadow at the part where the high bank and hedge overhang the brook. बिल्कुल हमारी चरागाह के सामने उस हिस्से की तरफ जहाँ बुलंद किनारा और झाड़ियों की बाढ़ नदी के ऊपर लटक रही थी. Now we shall see the hare. अब हम खरगोश देखेंगे. said my mother. मेरी माँ ने कहा. And just then a hare. तब ही एक खरगोश वाइल्ड जंगली था. विद फ्राइट गुस्से के साथ. रश्ड बाय एंड मेड फॉर द वुड्स. गुस्से के साथ गुजर गया जंगलों की तरफ. यानी कि तब ही एक खरगोश जंगल में डरा हुआ था और वो उन जंगलों में से तेज़ी से गुजर गया. rushed by and made for the woods. On came the dogs. They burst over the bank. कुत्ते तेज़ रफ्तारी से किनारे से गुजरे. Leaped the stream. नदी पर छलांग लगाई. And came dashing across the field. और शिकारियों को पीछे लिए खेतों में से भागते हुए गुजर गए. Followed by the huntsman. शिकारियों को का पीछा करते हुए. यानी कि शिकारियों को पीछे लिए हुए वो
खेतों में से भागते हुए गुजर गए। 6 or 8 men leaped their horses clean over close upon the dog. 6 या 8 आदमी कुत्तों के एंड पीछे अपने अपने घोड़ों को साथ छलांग लगाकर ले गए। The hare tried to get through the fence. खरगोश ने बाड़ के दरमियान में से गुजरने की कोशिश की। It was too thick. ये बहुत घनी थी। And she turned sharp round to make for the road. वो सड़क की जानिब मुड़ी, but it was too late. लेकिन बहुत देर हो गई थी। The dogs were upon her with their wild cries. कुत्ते वहशियाना चीखों के साथ उस पर टूट पड़े। We heard one shriek. हमने एक आवाज़ सुनी, एक चीख सुनी। That was the end of her. ये उसका एंड था। One of the huntsmen rode up and wept of the dogs. शिकारियों में से एक ने घोड़े को दौड़ाया और कुत्तों को चाबुक मारा। Who would soon have torn her to pieces. जो वो उसे टुकड़ों में तकसीम करने ही वाले थे। He held up the rabbit. उसने खरगोश को पकड़ लिया। And all the gentlemen seemed well pleased. और बाकी शरीफ लोग खुश मालूम हो रहे थे। As for me, मेरे लिए, I was so astonished that I did not at first see what was going on by the brook. मेरे लिए ये काफ़ी हैरान कुन था, मैंने ये कभी नहीं देखा था, यानी कि मेरे लिए पहला वाक़या था जो नदी के किनारे मैंने देखा। But when I did look, और जब मैंने देखा, there was a sad sight. वहाँ एक गमगीन नज़ारा था। 2 fine horses were down. 2 अच्छे घोड़े नीचे गिर गए थे। One was struggling in the stream. एक कोशिश कर रहा था नहर में। And the other was groaning on the grass. और दूसरा घास पर बेचैन पड़ा था। One of the riders was getting out of the water covered with mud. एक घुड़सवार पानी से बाहर आ रहा था जो कि कीचड़ से भरा हुआ था। The other lay quite still. और दूसरा साकन होकर लेटा हुआ था, यानी कि उसमें कोई हरकत नहीं थी। His neck is broken, said my mother. मेरी माँ ने कहा उसकी गर्दन टूट चुकी है। And serves him right too, said one of the colts. बछेरों में से एक ने कहा इसके साथ अच्छा हुआ। I thought the same. मैंने भी ऐसा ही सोचा, मुझे भी ऐसा ही लगा। But my mother did not join with us. लेकिन मेरी माँ ने हमारे साथ इत्फाक नहीं किया, हमारी बात के साथ इत्फाक नहीं किया। Well, no, she said. मेरी माँ ने कहा ऐसा नहीं कहना चाहिए। You must not say that. आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। But though I am an old horse, अगरचे मैं बूढ़ी हुई हूँ, and have seen, और देख चुकी हूँ, and heard a great deal, और बहुत कुछ सुन चुकी हूँ, I never yet could make out why men are so fond of this sport. मुझे समझ नहीं आती कि आदमी इस खेल के शौकीन क्यों है। They often hunt themselves. They often hurt themselves. अक्सर ये अच्छे घोड़ों को तकलीफ़ देते हैं, खुद को तकलीफ़ देते हैं। Often spoil good horses. और अक्सर अच्छे घोड़ों को बर्बाद कर देते हैं। And tear up the fields. खेतों को उजाड़ देते हैं। All for a hare. सिर्फ एक खरगोश के लिए, और a fox या लूमड़ के लिए।
और स्टैग या बड़ा सिंगी के लिए। That they could get more easily some other way, जैसा कि वो बहुत आसानी से इनको हासिल कर सकते हैं। बट लेकिन we are only horses and we don't know, हम तो सिर्फ घोड़े हैं, हम नहीं जानते।